کیا محمد ایک نبی تھے؟ اس سیریز دا محمد کے ذریعے ہم یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں ان کے بچپن سے لے کر موت تک کی کہانی کور کرنے کی کوشش ہے، اور فی الحال واقعہ چل رہا ہے ان کے نبوت سے پہلے کا، جہاں ان کی شادی خدیجہ سے ہو چکی ہے، اور اب آگے جانیں گے کہ کیسے نبی کو مجبوراً اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کرنا پڑا۔ آج کے ایپیسوڈ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح محمد پر قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی۔ تو بنے رہیے ویڈیو کے آخر تک، اور شروع کرتے ہیں انسانیت کے نام سے۔ دا محمد، وہ سیریز جس کے پچھلے ویڈیوز کے ذریعے اب تک ہم نے جانا کہ اسلام کے آخری نبی یعنی حضرت محمد کی زندگی نبوت ملنے سے پہلے کس طرح کی تھی۔ محمد صاحب کی زندگی ہمیشہ اکیلے پن میں ہی بیتی، یہاں تک کہ ان کی شادی خدیجہ سے ہونے کے بعد بھی محمد صاحب کی زندگی اسی طرح ہی بیتتی رہی، جس میں یہ ہمیشہ ہی خود کے خیالوں میں کھوئے رہتے تھے، جبکہ خدیجہ ان کی بہت کیئر کرتی ہے، اور اس وجہ سے خدیجہ کا اپنا بزنس بھی ٹھپ ہونے لگتا ہے۔ اسلامک ہسٹری میں بھی محمد کی زندگی کی زیادہ تر ڈیٹیل ہمیں نبوت کے بعد سے ہی ملتی ہے، کیونکہ اسی وقت سے ہی محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ میں تبدیل ہو گئے تھے۔ آج ہم اسلام کی اسی کہانی پر سے پوری طرح سے پردہ ہٹائیں گے اور جانیں گے اسلام کی شروعات کی اصل وجہ، جو کہ شروع ہوتی ہے محمد صاحب کی زندگی کی 40 سال کی عمر سے، جب انہوں نے اپنے آپ کو آخری نبی ڈکلیئر کر ہی دیا۔ اس سیریز سے پہلے کی ساری ویڈیوز آپ میری اس پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں سے ساری ویڈیوز آپ کو اس کے صحیح آرڈر میں مل جائیں گی، جو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے چینل میں شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں نبی کے دماغی فطور سے شروع ہو کر قرآن کی پہلی آیت آنے کے سفر پر۔ محمد صاحب کی دماغی بیماری اور ان پر اترنے والی پہلی وحی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ محمد صاحب کی 40 سال کی عمر سے نبوت ملنے کے بعد سے ہی اسلام کی اصل شروعات ہوتی ہے۔ یہاں سے یہ اپنی ہاری ہوئی اکیلے پن کی زندگی کو اپنی مرضی کی بادشاہی والی زندگی میں تبدیل کرنے کے سفر پر چل دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے یہ جانا تھا کہ کس طرح نبی کے بچپن کی بیماریوں کی وجہ سے انہیں دکھنے والی عجیب چیزوں کو خدیجہ اور اس کے بھائی ورقہ بن نوفال نے نبوت کا اشارہ سمجھا تھا، جبکہ ان کی عمر تب محض 25 سال تھی، اور نبوت ملی 40 سال کی عمر میں۔ یعنی بیچ میں 15 سال اللہ میاں سوچ میں پڑے ہوئے تھے کہ اس آدمی کو نبی بنایا جائے یا نہیں۔ یہیں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عجیب چیزوں کا دکھنا ایک مانسک بیماری سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ دراصل یہی وہ چیز ہے جو محمد کو پرانے نبیوں سے الگ بناتی ہے، اور جو ہمیں محمد کے جھوٹے نبی ہونے کا ثبوت بھی دیتی ہے۔ بھلے محمد سے پہلے کے نبیوں کی کہانی محض ایک میتھولوجی ہو، مگر ان قصوں میں بھی کسی بھی نبی نے محمد جیسی عجیب و غریب حرکتیں نہیں کی تھیں، مانو جیسے محمد زبردستی اللہ کے نبی ہونے کا ڈھونگ کر رہے ہوں۔ جہاں ہمیں پہلے کے نبیوں کی کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے جب خدا نے موسیٰ سے بات کی، تب موسیٰ کو ایک ہی پل میں سب کچھ سمجھ آ گیا کہ وہ کون ہے اور اسے کیا کرنا ہے، اور اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے اس نے وہ ہر کام کیا جو لوگوں کی ایک نبی سے امید ہوتی ہے۔ جیسے اپنے آپ کو سچے رسول ہونے کا صرف دعویٰ ہی نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو خدا کی مدد سے ایسے معجزات دکھائے جس کے بعد لوگ خود ہی اسے سچا نبی مان گئے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس نے اپنی خود کی قوم کے لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں کو فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے آزاد بھی کروایا۔ مگر محمد کے کیس میں یہ ساری کہانی الٹ تھی۔ انہیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کون ہے، بلکہ وہ ورقہ بن نوفال تھا، جس نے محمد کی دماغی بیماری کو دیکھ کر 15 سال پہلے کہا تھا کہ محمد اس امت کا ہونے والا ایک نبی ہے۔ اگر محمد سچے ہوتے تو یہ دعویٰ تو خدا کے کرشموں سے ثابت ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے ان 15 سالوں میں بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ خیر، محمد کی بیماری کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے پرانی گواہیوں سے۔ نبوت سے پہلے خدیجہ اور ورقہ بن نوفال کے علاوہ جس نے بھی محمد کو دیکھا، اس نے اسے مانسک بیمار ہی بتایا، جیسے بچپن میں ان کی پرورش کرنے والی آیا حلیمہ اور اس کے ہسبینڈ نے، جب انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا کہ محمد ایک دماغی مریض ہے اور اسے مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اور بھی ایسے کئی اسلامک ریفرنسز ملتے ہیں جن سے یہ بات اور پکی ہو جاتی ہے۔
जैसे कभी कभी मोहम्मद के कान में बड़े बड़े घंटों की आवाज सुनाई देती थी, जिसको सुनने के बाद मोहम्मद बहुत देर तक बिल्कुल सुन्न हो जाते थे। कई बार ठंड में भी रसूल के पसीने छूट जाया करते थे। तबकात वगैरह में आता है कि जब रसूल को इल्हाम यानी अल्लाह का पैगाम मिलना होता था तो उन्हें बेचैनी होने लगती थी और उनका चेहरा पूरी तरह से तन जाता था और कुछ घंटों के लिए मोहम्मद ऐसे हो जाते थे जैसे कि गहरी नींद में चले गए हों। तबरी में आता है कि रसूल ने खुद कहा कि एक बार मैं खड़ा था, तभी अचानक मैं घुटनों के बल गिर पड़ा और मेरा शरीर जोरों से कांपने लगा। नबूवत के बाद से मोहम्मद के साथ जब भी कोई इस तरह की अजीब चीज होती तो वो इसे खुदा की वही बता दिया करते थे और फिर ये कुरान की नाजिल हुई आयत बन जाती थी। यहाँ तक कि कभी कभार बिना किसी इफेक्ट के भी रसूल अल्लाह पर कलाम नाजिल हो जाता था, जिससे साफ जाहिर होता है कि मोहम्मद साहब जरूरत पड़ने पर झूठ बोल दिया करते थे और किसी भी वक्त अपने हिसाब से आयत उतार देते थे। यहाँ एक बड़ी दलील ये भी दी जा सकती है कि अगर ये सारी चीजों के होने से कुरान की आयतें नाजिल होती थीं, तो नबूवत से पहले भी मोहम्मद के साथ इस तरह की हरकतें बचपन से ही क्यों होती थी। खैर, अब देखते हैं इनकी पहली वही यानी कुरान की पहली आयत की दास्तां। नबूवत से पहले जब मोहम्मद की उम्र करीब 37 साल की थी, तब इन्हें मक्का में कोई नहीं जानता था। मोहम्मद का सारा वक्त तन्हाई में ही बीतता था और इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खदीजा की पिछली शादियों से जो कई सारे बच्चे थे, मोहम्मद अब खदीजा से शादी के बाद उन बच्चों के बाप बन चुके थे। मगर मोहम्मद ने कभी बाप होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई और खदीजा अकेले ही घर पर बच्चों की परवरिश किया करती थी और मोहम्मद तिजारत के काम करने के बजाय सारा वक्त गारे हिरा की गुफाओं में बिताया करते थे। धीरे धीरे मोहम्मद की ये तकलीफ बढ़ती चली गई और मोहम्मद को खुद ये यकीन हो गया था कि उसके ऊपर शैतान का साया है। हजरत मोहम्मद खदीजा से फरमाया करते थे कि जब भी मैं तन्हाई में जाकर बैठता हूँ तो मुझे अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती हैं और अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं, और जब मैं जाग रहा होता हूँ तो मुझे एक रोशनी नज़र आती है, जिसके नतीजे में हजरत मोहम्मद बहुत डर जाया करते थे और कहा करते थे कि आवाज़ें सुनने में मुझे इतना डर लगता था कि मैं सोचता था कि कहीं मुझ पर जिन यानी किसी शैतान का कोई असर ना हो गया हो। ये सब बातें सुनकर मोहम्मद की बीवी खदीजा मोहम्मद को झूठी तसल्ली दिया करती थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप पर कोई शैतान का साया नहीं है। नबूवत से पहले मोहम्मद साहब का अकेले वक्त बिताना तो आम था, मगर जब इनकी तकलीफें ज़्यादा बढ़ गईं तो ये और ज़्यादा अकेले वक्त बिताने लगे। यहाँ तक कि पहाड़ों में चढ़कर महीनों वक्त बिता दिया करते थे और जब इनके पास खाने की चीज़ें ख़त्म हो जाती तब ये पहाड़ से नीचे उतरते और सीधा खदीजा के पास जाते और घर से खजूर वगैरह लेकर तुरंत दोबारा से पहाड़ों पर चढ़ जाया करते थे। तो इस तरह ये पहले से भी ज़्यादा वक्त अकेले में बिताने लगे थे। मोहम्मद के अकेलेपनों को देखते हुए इस्लामिक तारीख दानों ने ये लिखा कि खुद अल्लाह ने ही मोहम्मद साहब के मन में तन्हाई और अकेलेपन में वक्त बिताने का शौक पैदा कर दिया था। इसके अलावा यही मुस्लिम स्कॉलर ये भी कहते हैं कि मोहम्मद अल्लाह की इबादत करने के लिए ही अकेले रहते थे, जो कि पूरी तरह से सच नहीं है। दरअसल ये पहाड़ों में वक्त बिताने का काम मक्का के मुशरिक लोग भी किया करते थे, जो खुद हमें इस्लामिक किताबों से ही पता चलता है, और मोहम्मद बस पूरी तरह से डिस्टर्ब थे, सिर्फ इसलिए ऐसा करते थे। खैर, इसी तरह रोज रोज पहाड़ों में जाने पर एक बार एक अजीब किस्सा पेश आया। मोहम्मद साहब ने खुद फरमाया कि मैं जब पहाड़ों पर था तो मुझे फिर से अचानक वही सब आवाजें सुनाई देने लगी। मैं वहीं पर रुककर आवाजों की तरफ देखने लगा। मैं ना तो अपनी जगह से आगे बढ़ा था और ना ही पीछे हटा था, और वहीं खड़े होकर आसमान की तरफ देखने लगा। मगर मैं जहाँ कहीं भी देखता मुझे वही अजीब चीजें हर तरफ दिखाई देती, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि वो अजीब चीज हर जगह ना होकर खुद मोहम्मद के दिमाग में ही थी। इसीलिए इन्हें हर तरफ से वो चीज दिखाई और सुनाई पड़ रही थी। आगे कहते हैं कि मैं बहुत देर तक अपनी जगह पर ही खड़ा रहा और इसे देखने लगा। उधर खदीजा मेरा इंतजार कर रही थी और फिर खदीजा ने मेरी तलाश के लिए आदमियों को रवाना किया जो मुझे ढूंढ रहे थे। जब मेरी नजरों से अजीब चीज गायब हो गई तब मैं खुद ही भागता हुआ अपनी बीवी के पास चला गया, और जब मैं खदीजा के पास पहुंचा तो मैंने इसकी रान का सहारा लिया और इसके पास ही बैठ गया और इनको सारा किस्सा बताने लगा। खदीजा मोहम्मद से उसकी तबीयत के बारे में पूछती तो मोहम्मद जवाब देता कि मुझको अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं। इस पर खदीजा ने मोहम्मद से कहा कि उठो और मेरी बाई जांग पर बैठ जाओ। मोहम्मद ने ऐसा ही किया। खदीजा ने पूछा कि क्या अब वह तुम्हें दिखाई दे रहा है? मोहम्मद ने कहा हाँ।
इस पर खदीजा ने कहा कि अब मेरी दाहिनी जांग पर बैठ जाओ। मोहम्मद वहां बैठ गए। खदीजा ने पूछा कि क्या अब दिखाई दे रहा है? मोहम्मद ने कहा हाँ। इस पर खदीजा ने कहा कि अब मेरी गोद में नीचे की तरफ बैठ जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। जब इन्होंने ऐसा किया तब भी वो शैतान मोहम्मद को दिख रहा था। फिर खदीजा ने अपना पर्दा हटा दिया और जब ऐसा किया तब वो चीज मोहम्मद को दिखना बंद हो गई, जिस पर खदीजा ने कहा कि वो फरिश्ता था ना कि शैतान। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ फरिश्ता खदीजा से शर्मा कर भाग गया हो। ये भी हो सकता है कि खदीजा के इस तरह के अमल करने से मोहम्मद का ध्यान भटक गया हो, जिस वजह से वो दिखना बंद हो गया हो। ये वो दौर था कि जब इंसान को दिमागी बीमारी और उसके इलाज की समझ नहीं थी, इसलिए मोहम्मद को खदीजा से झूठी तसल्ली ही मिलती थी कि वो अल्लाह के चुने हुए नबी हैं। ये सिलसिला सालों तक चला और जब मोहम्मद की उम्र करीब 40 साल की हुई, उस वक्त मोहम्मद की जिंदगी में कुछ ऐसी घटना हुई जिसके बाद आखिरकार नबी होने की बात बार बार सुनकर मोहम्मद ने फ्रस्ट्रेशन में आकर ये बात खुद भी कबूल कर ली कि हाँ वो एक नबी हैं। इसका किस्सा यूं हुआ था कि एक रात जब मोहम्मद गारे हिरा में था तब फरिश्ता जिब्राइल फिर से आ जाता है और इस बार ये इनसे बातें करने लगता है। जिब्राइल ने आकर मोहम्मद से कहा कि पढ़ो। मोहम्मद ने जवाब दिया कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इस पर जिब्राइल ने मोहम्मद को पकड़कर कस के दबा दिया। मोहम्मद ने कहा कि उसने मुझे इतना कस के दबोचा था कि मुझे लगा मानो मेरी जान ही निकल जाएगी, और इसने मुझे कहा कि मैं जो कहूँ वो पढ़ो। और इस तरह इन पर कुरान की सूरह अल अलक की आयतें नाजिल हुईं। जिसके बाद मोहम्मद हाफते कांपते हुए घर वापस आए और वो फरिश्ता मोहम्मद को लगातार दिखता जा रहा था और कह रहा था कि ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्राइल हूँ। मोहम्मद ने घर पहुंचते ही सारी बातें खदीजा को बताईं और उस वक्त मोहम्मद की हालत पूरी तरह खस्ता हो गई थी। मगर खदीजा ने ये सुनकर परेशान होने के बजाय खुश हुई और मोहम्मद से कहने लगी कि कसम खुदा की आप इस उम्मत के होने वाले नबी हैं। वर्का बिन नौफाल का वाकया। इसके बाद खदीजा मोहम्मद को अपने भाई वर्का बिन नौफाल के पास ले जाती है। वर्का बिन नौफाल ये वही शख्स था जिसने 15 साल पहले खदीजा के मन में ये वहम डाल दिया था कि मोहम्मद इस उम्मत का होने वाला एक नबी है, और वर्का के मशवरे पर ही खदीजा ने मोहम्मद से शादी की थी। सीरत हल्बिया में आता है, इसके बाद खदीजा मोहम्मद को वर्का बिन नौफाल के पास ले गई और इनको सारा वाकया बताया कि इन्होंने अभी अभी जिब्राइल को देखा है और इसकी आवाजें भी सुनी हैं, और जिब्राइल इनसे कह रहा था कि आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्राइल हूं। ये सारा वाकया सुन के वर्का एकदम पुकार उठा, कसम इस जात की जिसके कब्जे मेरी जान है, खदीजा अगर तुम सच कह रही हो तो इसमें कोई शक नहीं कि इनके पास वही जिब्राइल आया था जो नबी मूसा के पास आया करता था, और मोहम्मद अब इसी उम्मत के नबी हैं। बस इनसे कह दो कि वो अब इस बात पर यकीन रखें। यानी मोहम्मद यहाँ इतना कंफ्यूज थे कि वर्का ने यह भी कहा कि इनसे कहो कि इस बात पर यकीन रखो। यहाँ पर इस्लामिक तारीख लिखने वाले तारीखदानों ने मोहम्मद को नबी साबित करने के चक्कर में जबरदस्ती रिवायतों में मिलावट करने की कोशिश भी की। इनका मानना है कि वर्का का दावा इसलिए सच्चा था क्योंकि वर्का जिब्राइल का नाम सुनकर हैरान हो गया था और ये साबित करने की कोशिश की कि अरब के लोग जिब्राइल के बारे में नहीं जानते थे। मगर ये सरासर झूठ है, क्योंकि उस वक्त अरब में सिर्फ पैगन्स ही नहीं बल्कि यहूदी और ईसाई भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, और अरब के लोग नबियों और फरिश्तों की इन कहानियों से बहुत अच्छे से वाकिफ थे। और इतना ही नहीं, इन्होंने इब्राहिम, मूसा और ईसा नबियों की मूर्तियां भी अपने काबे में रखी हुई थीं, जो कि इस रेफरेंस से भी पता चलता है कि जब मोहम्मद ने फतेह मक्का किया और जाकर मूर्तियों को गिराया तब वहां कई नबियों की मूर्तियां भी मौजूद थीं। इसके अलावा एक हदीस में आता है कि मोहम्मद की सबसे कम उम्र की बीवी आयशा एक बार एक घोड़े की शेप की डॉल के साथ में खेल रही थी। इस पर मोहम्मद ने कहा कि आयशा, क्या घोड़ों के भी भला कोई पर होते हैं? इस पर आयशा, जो कि एक बच्ची है, जवाब देती है कि क्या आपको नहीं मालूम कि नबी सुलेमान के घोड़े के भी पर हुआ करते थे? तो यहाँ एक बच्ची भी पुराने नबियों के बारे में मोहम्मद से ज्यादा जानती दिख रही है। तो ये कहना है कि जिब्राइल को वहां कोई नहीं जानता था, ये गलत है। खैर, अब वापस आते हैं वर्का के वाक्य पर। अब क्योंकि वर्का एक स्कॉलर था और ये उस वक्त बाइबल को अरबी में ट्रांसलेट करता था, और कहा जाता है कि उस वक्त वर्का ने पुरानी किताबों से मोहम्मद के होने की तस्दीक की थी। हालांकि ये भी याद रखें कि इस्लाम के हिसाब से पुरानी सब किताबें करप्ट हो चुकी थी और एक भी किताब अल्लाह महफूज नहीं रख पाया जो मोहम्मद के सच्चे होने की गवाही दे पाए। बहरहाल
वर्का बिन नौफाल मोहम्मद पर फोर्स करने लगा और कहा कि अब तुम इस बात पर यकीन कर लो कि तुम एक नबी हो। तो इस तरह मोहम्मद को जबरदस्ती नबी चुन लिया जाता है और उस पर कुरान की पहली आयत सूरह अलक, जिसे सूरह इकरा भी कहा जाता है, नाजिल हो जाती है, जो कि आज कुरान की पहली नहीं बल्कि 96 नंबर की सूरह है। वर्का की मौत। मोहम्मद जबरदस्ती नबी चुन लिए गए थे और उस वक्त कई लोगों ने इन्हें मानना भी शुरू कर दिया था, मगर हैरानी की बात यह है कि खुद मोहम्मद को भी उस वक्त अपने नबी होने पर यकीन नहीं था। मोहम्मद सिर्फ वर्का बिन नौफाल के सहारे ही अपनी नबूवत चला रहे थे। मगर इसके कुछ दिन बाद वर्का बिन नौफाल का इंतकाल भी हो जाता है। वर्का बिन नौफाल इस्लामिक हिस्ट्री का सबसे अजीब किरदार है। मोहम्मद का रिश्ता भी वर्का के साथ में कुछ अलग सा था, क्योंकि नबूवत के बाद से ही मोहम्मद ने अपने खानदान के लिए नफरत जाहिर की थी, मानो जैसे उनकी मौत से भी मोहम्मद को कोई फर्क ना पड़ा हो, जो कि आप इस सीरीज के इस एपिसोड में भी देख सकते हैं। खैर, उस वक्त मक्का में वर्का ही वो इकलौता शख्स था जिसकी मौत पर मोहम्मद ने गम जाहिर किया। मोहम्मद अपने पूरे खानदान वालों को जहन्नुमी कहते थे, फिर चाहे वो उनके माँ बाप दादा चाचा जो भी हों। मगर वर्का के मामले में मोहम्मद का इखलाक बिल्कुल अलग था। मोहम्मद अपने खानदान वालों को जहन्नुमी और वर्का बिन नौफाल को जन्नती बताते थे। और इतना ही नहीं, मोहम्मद ने जब भी अपनी जिंदगी में कभी इस शख्स का जिक्र किया तो कहा कि मैंने सुर्ख रंग के कपड़ों में वर्का बिन नौफाल को जन्नत में देखा है। इब्ने हिशाम लिखता है, वर्का की मौत के बाद से ही कुछ वक्त के लिए मोहम्मद के पास जिब्राइल आना बिल्कुल ही बंद हो गया, जिस वजह से मोहम्मद को बहुत सदमा हुआ। ये सदमा मोहम्मद के लिए इतना बड़ा था कि उसने पहाड़ों पर चढ़कर वहां से कूदकर खुदकुशी करने का फैसला किया। अब यहाँ पर ये कुछ अजीब मसला नजर आता है कि वर्का के मरने पर मोहम्मद पर जिब्राइल का आना कैसे बंद हो गया। क्या मोहम्मद पर आयतें उतरने में वर्का का कुछ हाथ था? खुदकुशी के फैसले पर भी सवाल बनता है। क्या मोहम्मद अब वर्का के साथ मिलकर इसी खेल में शामिल हो गए थे और अब वर्का की मौत के बाद पोल खुलने और बेइज्जती की वजह से खुदकुशी का फैसला किया, या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज्ड थे और सारे सवालों के जवाब वर्का ही दे सकता था, जो कि अब मर चुका था। कहा जाता है कि मोहम्मद ने 3 बार पहाड़ पर चढ़कर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन हर बार जिब्राइल फरिश्ता आकर उन्हें रोक देता और कहता कि आप खुदा के पैगंबर हैं। खैर, मोहम्मद के बार बार आत्महत्या की कोशिश करने के बाद जब वो नाकाम हुए और एक पल के लिए जब वो वापस अपने घर आ रहे थे, तभी मोहम्मद को आसमान में फिर से जिब्राइल दिखा। जिब्राइल का आकार बहुत बड़ा था और वो पूरे आसमान को घेरे हुए थे। जिब्राइल उस वक्त किसी तख्त पर बैठा हुआ था। मोहम्मद ने जिब्राइल को देखा और दौड़ते हुए घर आ गए। जब ये घर पहुंचे तो हर बार की तरह मोहम्मद ने कहा कि खदीजा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कंबल उड़ा दो। हालांकि ये वो आखिरी रात थी जब मोहम्मद को इस हाल में देखा गया। मोहम्मद हर बार की तरह कंबल के अंदर डरा हुआ लेटा था और फिर जब मोहम्मद उस रात के बाद उठा तो ये बात एक्सेप्ट कर ली कि हाँ, अब से मैं अल्लाह का एक नबी हूँ। इसी वक्त से मोहम्मद के नबी होने की असल कहानी शुरू होती है। उस रात जब मोहम्मद ने पहली बार खुद को नबी होने का दावा किया तो खदीजा ने एक पल में ही मोहम्मद को सच्चा नबी मान लिया और इस तरह मोहम्मद ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल लिया। वही मोहम्मद जो जिब्राइल को देखने के बाद खदीजा की गोद में छुप जाते थे, अचानक ही ये कहने लगते हैं कि देखो खदीजा, जिब्राइल तुम्हें सलाम कर रहे हैं। यानी मोहम्मद ने अब अपने डर पर काबू पा लिया था और अब इतने सालों बाद अपनी इस परेशानी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया। तो ये था किस्सा मोहम्मद पर पहली कुरान की आयत उतरने का। क्या आपको अभी भी लगता है कि ये सारे किस्से किसी खुदाई फितरत से ताल्लुक रखते हैं? मुझे लगता है कि मोहम्मद के लिए जान तो मोहम्मद के वक्त के लोग बिना देते, क्योंकि वो मोहम्मद के साथ सिर्फ इसलिए थे क्योंकि हर एक का कुछ ना कुछ स्वार्थ जुड़ा हुआ था। तो आखिर क्यों आज बहुत सारे लोग मोहम्मद से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार होते हैं? रीजन, ब्रेन वॉश। लोगों को ये कहानियां पता ही नहीं, तो बहुत हुआ मजहबों के पर्दे के पीछे से जज्बातों को बदलना। शेयर करें इस सीरीज को ताकि इन कहानियों की सच्चाई जानकर मजहबी कट्टरता खत्म हो सके। मिलेंगे जल्दी ही इसके आगे का इतिहास लेकर। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय विज्ञान, इंसानियत हाफिज।